6 बॉल पे 6 छक्के छुड़ा दिए। नहीं, हम युवराज सिंह का बात नहीं कर रहे, हम एविएशन इंस्टीट्यूट का युवराज सिंह के बारे में बोल रहे हैं, जिनका नाम है सुकर्णो नाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविएशन इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज सुकर्णो नाग जो 1 साल पहले हम लोगों का एस्पिरेंट था, आज बन गया युवराज सिंह। क्यों बोल रहे हैं? 1 साल में 6 एग्जाम क्रैक करना है, इसीलिए हम जो टैग दिए है 6 बॉल में 6 सिक्सेस, राइट। तो कैसे हुआ उसका सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए आज हम लोग प्रेजेंट है। तो चलिए आपके मुंह जुबानी सुनते हैं। सुकर्णो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, क्योंकि इनका SBI PO भी निकल गया है। PO भी क्यों बोल रहे हैं, चलिए उनके ही मुंह से सुनते हैं क्यों PO भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम उनका निकला है। तो बोलिए सुकर्णो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दे दीजिए। यस मैम, मैं सुकर्णो नाग, বাংলায় বলবো? यस, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें ही बोलिए। ওকে, আমি সুকর্ণ নাগ, আমি এভিয়েশনে ঢুকেছিলাম 2021 মার্চে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমি মোটামুটি RRB ক্লার্ক আর PO ছাড়া সব এক্সামই ক্র্যাক করতে থাকি। অ্যান্ড রিসেন্টলি আই গট দ্য নিউজ দ্যাট আমি SBI ক্লার্ক, SBI PO অ্যান্ড IBPS PO, দ্যাট ইজ কানাডা ব্যাংকে আমি জব পেয়েছি। অ্যান্ড দ্যাটস ইট। ओके, तो देखिए 1 साल पहले जो एस्पिरेंट था, आज 6 एग्जाम, टोटल 8 एग्जाम उन्होंने दिया। 8 एग्जाम में से 6 एग्जाम उनका निकल गया। तो 6 एग्जाम में से जैसे कि सुकर्णो ने बोला है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका सभी प्रीलिमिनरी निकल गया था एक्सेप्ट RRB PO एंड क्लर्क। उसको छोड़कर IBPS PO, IBPS क्लर्क कितना हुआ? 2, ठीक है। SBI PO, SBI क्लर्क कितना हुआ? 4। LIC AAO, जिनका देखिए मेंस का रिजल्ट नहीं आया है, वो भी उनका निकल गया। प्रीलिम्स और मेंस उन्होंने देकर रखा है। और जो एक है SSC CGL, तो इसीलिए 6 एग्जाम उन्होंने क्रैक कर लिए। तो सुकर्णो, फर्स्ट ये क्वेश्चन है, आप कौन सा नौकरी करना चाहते हैं? इतना एग्जाम तो निकला है। আমি SBI POটাই করতে চাই। अच्छा, उन्होंने चूज किया है SBI PO, फाइन। तो देखिए, ये तो कांग्रेचुलेशन गया। तो ये जो आपका सक्सेस का एक जर्नी है ना, तो फर्स्ट इसके लिए आप किसको थैंक्स देना चाहते हैं? ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক মাই প্যারেন্টস। প্রথমেই আমি বাবা মা, তারপর আমার বন্ধু বান্ধব, আমার টিচার অ্যান্ড সবাইকে আমি একসাথেই থ্যাঙ্কস জানাতে চাই। বাট প্রথম থ্যাঙ্কসটা যাবে আমার বাবা মাকে, যারা হচ্ছে আমাকে এই সুযোগটা দিয়েছে, যে এই সময়টা দিয়েছে। বিকজ এভরিওয়ান নোজ দ্যাট গভর্নমেন্ট জব ইজ নট আ কাপ অফ টি, অ্যান্ড সেটা করতে গেলে সময় লাগে। আর সেই জিনিসটা যখন অনেকে করতে পারে না, 2 বছর 3 বছর, তারা আমার উপর যে বিশ্বাসটা করেছে, मतलब पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत बिलीव किए, तो वो मतलब मैटर्स अ लॉट। क्योंकि जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं ना, तब कोई भी काम जो होना भी नहीं था वो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत काम करता है। एंड आई लाइक टू ऐड समथिंग, যে লাস্ট একটা ভিডিও হয়েছিল, আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, ইন্টারভিউ হয়েছিল, যেটাতে আমি কয়েকজনকে থ্যাঙ্কস জানাতে ভুলে গেছিলাম। তাদেরকে আমি স্পেশালি মেনশন করতে চাই। একদমই আমার বন্ধু বান্ধব যারা আমার কলেজের বন্ধু, লাইক রিকন, প্রতীক অ্যান্ড অর্ঘ, যারা হচ্ছে বিদেশে আছে এখন আপাতত, তারা কন্টিনিউয়াসলি আমার সাথে ভিডিও কলে যোগাযোগ রাখতো। আর ওরা কন্টিনিউয়াসলি আমাকে মানে প্রচণ্ডভাবে মোটিভেট করতো। আর ওদেরকে দেখেও মোটিভেট করতাম, বিকজ তারা খুব বড় বড় জায়গায় আছে তাদের ফিল্ডে। অ্যান্ড I would like to बड़ी जगह पहुंच गए, क्योंकि SBI is a brand itself, right? Yes, and also I'd like to specially thank to শান্তনী মোহান্তি, যে হচ্ছে এতদিন আমার সাথে মানে কন্টিনিউয়াসলি পাশে থেকেছে, একটা বন্ধুর মতো খুবই মানে সাপোর্ট করেছে সব দিক দিয়ে। সো আই লাইক টু স্পেশালি থ্যাঙ্ক টু হার, অ্যান্ড আই হোপ শি অলসো ক্লিয়ার্স দ্য এক্সাম দিস ইয়ার। অ্যান্ড এই বছরই যাতে সে সব কিছু তার মনোমতো পেতে পারে, আশা করি আমি। অ্যান্ড তাছাড়া আমি সৌম্য, সুনাম, এদেরকে আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই। অ্যান্ড লাস্টলি আই লাইক টু থ্যাঙ্ক স্পেশালি টু রূপা ম্যাম, যে হচ্ছে প্রথম থেকে আমার সাথে থেকেছে, মানে আমাকে গাইড করে গেছে। অ্যান্ড অলসো উইথ হার আমি আমার রাহুল স্যার, শরৎ স্যার, আদনান স্যার, পবন স্যার, পল্লবী ম্যাম, যিনি ম্যানেজমেন্টে আছে এভিয়েশনের, তাদের সবাইকেই। আর শুভঙ্কর স্যার, শুভঙ্কর স্যার, যিনি হচ্ছে আমাকে আমার একটা কাউন্সিলরের মতো বলতে পারো, দাদা আমার, যে হচ্ছে আমাকে 10th থেকে পড়ায়। সে এখনও আমাকে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট রেখে আমার বাড়িতে আসে, তাকেও আমি থ্যাঙ্কস জানাতে চাই। সো দ্যাটস অল।
तो सुपर्णो, आपका बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड? मेरा बैकग्राउंड है मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उसके बाद से आपने क्या डिसीजन लिया कि इंजीनियरिंग को छोड़कर कॉम्पिटिटिव फील्ड, वो भी बैंकिंग में, क्यों? Yes, I'd like to add something. After engineering in 2021, you know সেই সময়টা ছিল কোভিডের সময়, মানে সবাই বাড়িতে একদম বন্ধ। সে সময় আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি ক্যাম্পাসিংয়ে বসিনি, প্লেসমেন্টে আমি বসিনি। সো সে সময় আমার ইচ্ছা ছিল কি গেটের জন্য প্রিপারেশন নেওয়া। সো 2020 আমার গেটের জন্য প্রিপারেশন করতে চলে যায়, বাট আনফর্চুনেটলি আমার গেটের রেজাল্ট খুবই মানে মনোমতো হয়নি সেই সময়টা। तो हमार जेटा इच्छा थी, यहाँ पर हम थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहते हैं। क्या उन्होंने बोला अनफॉर्चुनेटली, लाइफ में कुछ भी अनफॉर्चुनेट नहीं होता है, क्योंकि जो भी अनफॉर्चुनेट होता है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग फॉर्चुनेट। तो आज जो आप SBI में बैठे हैं, मतलब बैठने वाले हैं, पोस्टिंग कुछ देर बाद ही हो जाएगा, कुछ दिन बाद, तो वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं था, वो फॉर्चुनेट होने की वजह से ही अनफॉर्चुनेट एक हैपन हुआ था। इनिशियली आपको लगा था अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वो फॉर्चुनेट है, राइट? तो कुछ भी होता है तो अच्छे के लिए ही होता है एकदम। तो आप बीटेक के बाद ऐसे सोचे, तो आप प्रिपरेशन कहाँ से लिए? মানে ফার্স্ট অফ অল ম্যাম আফটার গেট দ্য রেজাল্ট দেন আমি তখন ভেবেছিলাম কি আইটিতেই যাব, কিন্তু আইটির জন্য প্রিপারেশনও নিয়েছিলাম, কয়েকটা ইউডেমি কোর্স নিয়েছিলাম সাম অফ অর, অ্যান্ড আমি পেয়েওছিলাম। বাট তখন আমার যে শুভঙ্কর স্যার, যার কথা বললাম, সেই আমাকে অ্যাভিশনের কথা রেকমেন্ড করে। এখন আমি অ্যাভিশনে এসেই সব কিছু প্রথম জানতে পারি। তার আগে আমি লাইক জানতাম যে ব্যাংক, SSC এগুলো এক্সাম হয়, বাট আমি কখনো ভাবিনি যে এগুলো আমি কখনো দেবো। লাইক কোনোদিন আমার আজ থেকে 2-3 বছর আগেও বলতো জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাসে কোনো আইডিয়া জাস্ট ছিল না যে আমি কখনো ব্যাংকের এক্সামে বসবো। সো आफ्टर कमिंग टू एविशन देन इट ऑल मतलब आपका जो आपने एडमिशन कब लिए थे? लास्ट ईयर, राइट? तो लास्ट ईयर से लेकर इस ईयर तक 1 साल हुआ, राइट? पूरा आपका जो प्रिपरेशन का जर्नी रहा, तो वो कहाँ से? एविशन एकदम। तो एविशन में आपको क्या क्या हेल्प मिला? एविशन থেকে ম্যাম ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু সে দ্য গাইডেন্স টু দ্য স্ট্র্যাটেজি এন্ড দ্য শিডিউল অফ এক্সাম, লাইক হোয়াট টাইপ অফ এক্সামস আর হ্যাঁ কি টাইপের এক্সাম হয় রেগুলারলি, তারপর কি সিলেবাস কি হয়, এগুলো এসব জিনিসগুলো আপনারা ইউটিউবেও পাবেন। বাট ইন এভিশন দে মোর লাইক পার্সোনালাইজড গাইডেন্স আই উড से जिस मैमेर साथे हाँ बेसिक आप एकदम ही नहीं जानते थे। बेसिक से लेकर आज 1 साल में आपने 6 एग्जाम क्रैक भी कर लिए। मतलब ये मीथ नहीं है, हम लोग बोलते कि मीथ है कि 1 साल में ये हो नहीं पाएगा, लेकिन ये मीथ ब्रेकर है, राइट? तो हो सकता है 1 साल में, राइट? Yes, it's possible for banking exam because banking exam they conduct the exam very dutifully and very fast. If one যদি কেউ অ্যাটেন্টিভ হয় তার পড়াশোনাতে, সে যদি কনসিস্টেंट থাকে, तो बैंकिंग एग्जाम इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली पॉसिबल। अगर आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है, जैसे कि मैं क्लास में भी बोलती हूँ, राइट? यू नो इफ योर प्रिपरेशन इज इन द राइट पाथ, देन विदिन 6 to 8 months you will be seated on your branch, अगर आप बैंक के लिए प्रिपरेशन obviously and I like to say something here যে ব্যাংকিং এক্সামে তুমি যে কোনো একটা এক্সামের জন্য যদি প্রিপেয়ার করো, লাইক ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আরআরবি ক্লার্ক। আই গেস তুমি যদি আরআরবি ক্লার্কের জন্য প্রিপেয়ার করো, তুমি এর পরে যে এক্সামগুলো হচ্ছে লাইক আইবিএস পিও বলো, আইবিএস ক্লার্ক বলো, এসবিআই পিও, এসবিআই ক্লার্ক, সেগুলো সব কিছুর জন্য তুমি একসাথে প্রিপেয়ার হয়ে যাচ্ছ। मतलब एक चीज को आप टारगेट बनाइए, क्योंकि लगभग 6 एग्जाम तो आपको बैंक के लिए मिलता ही हर एक साल, तो कोई एक को टारगेट बनाइए। सभी एग्जाम को आप लेंगे टेस्ट सीरीज, राइट? जिसको आप फोकस करना चाहते हैं वो आपके लिए होगा वनडे मैच, जैसे कि सुकर्णो चाहता था एसबीआई पीओ, अब चाहता है शायद आरबीआई, राइट? तो अभी तक था उसका वनडे मैच एसबीआई पीओ, तो उसके बाद से मतलब वो जितना टेस्ट सीरीज खेला वहां पे भी उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उनको चाहिए था वनडे मैच वाला सिलेक्शन, तो एसबीआई जहां पर हो गया। अच्छा सुकर्णो, तो मतलब जो एस्पिरेंट्स है, जो हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जानना चाहते हैं, बहुत लोग बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तैयारी का आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए जिन लोगों का बहुत टाइम, ऐसा नहीं कि देखिए बहुत लोग प्रिपरेशन नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको ज्यादा टाइम लग जाता है, क्यों? ऐसा क्या स्ट्रेटेजी लेना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल
স্টুডেন্ট का सिलेक्शन हो जाए। ম্যাম আমি এখানে বলতে চাইবো কি মক টেস্টের কথা, তারা যত পারো যাতে মক টেস্ট দেওয়া যায় তত ভালো। অ্যান্ড আমি এখানে একটা জিনিস অ্যাড করবো যে ইংলিশের ক্ষেত্রে লাইক যারা এরকম আপনি বলছেন, আমি খেয়াল করেছি যে বেশিরভাগ তারা হচ্ছে ইংলিশের ক্ষেত্রে খুব একটু উইক আছে। আর ইংলিশটা এমন একটা সাবজেক্ট যেটা খুব মানে শিগগিরই ক্যাপচার করা যায় না, আমি যেটা দেখেছি যে इंग्लिश ऐसा एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश ना सब्जेक्ट नहीं लैंग्वेज है। जैसे कि देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, लैंग्वेज कैप्चर मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं शुकौनो बंगाली, लेकिन मेरा हिंदी से आप लोगों को साफ पता चल रहा है कि मतलब हम बंगाली है, राइट। तो लैंग्वेज देखिए सीखते सीखते सीखा जाता है, तो इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सोचिए कोई इंग्लिश में वीक है, वो कैसे इम्प्रूव करेगा? ম্যাম এই সময় আমি বলতে চাইবো ব্যাংকের এক্সাম যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি হয়, তো সেক্ষেত্রে যদি তাদের একটু তাড়াহুড়ো থাকে, লাইক একটু এমার্জেন্সি থাকে, দেন আমি মনে করি তাদের কন্টিনিউয়াসলি মক টেস্ট, সেকশনাল টেস্ট দেওয়া দরকার। কারণ পড়ে বা রুল দেখে পসিবল আমি যা দেখেছি হয় না অতটা। তুমি সেকশনাল টেস্ট দিতে 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 লাইক একটা এরারকে তুমি বারবার যখন সেম রুলটা অ্যাপ্লাই করছো, তোমার আলটিমেটলি একটা প্রজেকশন হয়ে যাচ্ছে যে জিনিসটা কিভাবে হতে পারে জিনিসটা। मतलब मॉक टेस्ट आप कंटिन्यूअसली दोगे तो देखिए वो अगर कुछ सही भी हो रहा है तो जिस वजह से हमने सोचा कि सही हो रहा है वो क्या करेक्ट है, या फिर अगर गलती हो रहा है तो एनालिसिस करके, एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट है ना शुभानु, एकदम कि मॉक टेस्ट देना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है एनालिसिस करना, क्योंकि क्या गलती हुआ है उसको मुझे रेक्टिफाई करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट रहता है सिर्फ मॉक देता है, एनालिसिस नहीं करता है, तब मॉक देता है। मैम मॉक देना एक बात है, बट एनालिसिस करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गिविंग। मतलब एनालिसिस भी विदाउट डूइंग द एनालिसिस गिविंग मॉक टेस्ट इज जस्ट মানে কি বলবো লাইক मतलब ऑल गोज इन देन, राइट। बिस्कुट छाड़ा चा এটা বলতে পারি, छाड़ा चा। अच्छा मजा नहीं, तो मतलब एनालिसिस भी करना है। अच्छा शुभानु, एस्पिरेंट ये भी जानना चाहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इसका कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी स्टूडेंट या फिर एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कि आप कितना घंटा पढ़ते थे कि एक साल में इतना सारा जॉब निकाल लिए? Like I say average 5 to 6 hours in Aviation library. After going home আমি কিছু পড়তাম না। आप सिर्फ एविजन लाइब्रेरी में पढ़ते थे, राइट? तो यहाँ पे हेल्प मिलता था? यस, बहुत सारा, क्योंकि बिकॉज এখানে ম্যাম স্যার সবাই আছেন, তাদের গাইডেন্স অল টাইম অ্যাভেলেবল অ্যান্ড অল কম্পিউটার্স আর অ্যাভেলেবল। এনি রিসোর্সেস যদি লাগে তো আমি কম্পিউটার থেকে সেটা অ্যাভেল করতে পারতাম, তো সব দিক থেকে খুব मतलब यहाँ पर एक एनवायरनमेंट ছিল একটা। एनवायरनमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है एविजन में जो आपको मिला है, राइट? एग्जैक्टली। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरेंस, कि डाउट क्लियर होता था आपका यहाँ पे? यस ম্যামের থেকে সব সময় হেল্প পেতাম, আর সেই দিক থেকে ডাউট ক্লিয়ার অলওয়েজ হতো জিনিসটা। ओके, तो डाउट क्लियर करना भी बहुत जरूरी है, जो मतलब एविजन में इनको मिला है लैब फैसिलिटी, जो एक एनवायरनमेंट आप उनके लिए तैयार कर दिए कि एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि देखिए आपके बगल में बैठ के कोई पढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको भी इच्छा होगा कि हम पढ़े, राइट? घर में क्या होता है, हम अकेले ही है, हम किसी को देख नहीं पा रहे कि कौन कितना पढ़ रहा है, राइट? अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शुभानु आपके लिए, सोचिए जो स्टूडेंट लोगों का मैक्सिमम क्वेरी रहता है कि कितना घंटे आप पढ़े, 5-6 घंटे, राइट? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का जिन लोगों का नहीं हुआ है वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि डीमोटिवेट जो लोग हो रहे हैं? ডিমোটিভেট होने की बात नहीं है। आई लाइक टू আমি যেটা বলবো সেটা একমাত্র ব্যাংক এক্সামের ক্ষেত্রে, বিকজ ব্যাংক এক্সাম রেগুলারলি হয়, প্রত্যেক বছর তারা কিছু না কিছু ভ্যাকেন্সি বের করে। সো একবার যখন হয়নি দেন লাইক 2-3 দিন একটু অ্যানালাইসিস করো যে কেন, কোথায় লাইক উইকনেসটা হচ্ছে, কোথায় আমার খামতি হয়েছে, দেন আবার ফুল দামে একদম প্রথম থেকে স্টার্ট করো, লাইক ভুলে যাও সবকিছু, এরকমই বলতে চাইবো। ডিমোটিভেট হলে তুমি জার্নিটাকে সেখানেই তুমি শেষ করে দিচ্ছ, জার্নিটাকে कोई कंटिन्यू रखो। हाँ, डिमोटिवेशन होना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बोला है बैंक का एग्जाम हर साल बहुत सारे होता है। सपोज कोई एग्जाम आपका नहीं भी हुआ है, जो लोग देख रहे हैं मे भी बहुत लोग का SBI PO नहीं हुआ है क्योंकि रिजल्ट अभी आया है, ठीक है? तो जिन लोगों का नहीं आया है कोई निराशा का बात ही नहीं है, क्योंकि इस साल भी फिर से आने वाला है। आपको पता भी है लगभग कितना कौन सा महीने में होता है। जैसे कि अगर आप IBPS को देखना चाहेंगे, IBPS तो कैलेंडर ही रिलीज कर देंगे, कब एग्जाम है, कब मेंस है, कब इंटरव्यू है, कब सिलेक्शन है, कब आपका फाइनल पोस्टिंग है, ये भी आपको पता है। जब देखिए डेस्टिनेशन पता है ना तो जर्नी देखिए आपका स्मूथ हो जाता है, तो ये बैंक का एक फैसिलिटीज है, राइट? अच्छा, सेकेंड चीज आपका जो है देखिए शुभानु, बैंक का एग्जाम का तीनों फेज होता है, एक प्रिलिमिनरी, एक मेंस, एक इंटरव्यू।
तो प्रिलिमिनरी के लिए अलग से कुछ बोलना चाहेंगे? मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। ओके। अच्छा सुपर्णो, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, मैथ्स में प्रॉब्लम होता है। तो मतलब अगर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनका सिलेक्शन नहीं होगा? आई वुड से मतलब मैथ्स मॉक टेस्ट से मतलब क्लियर हो जाता है रेगुलरली। मैथ्स कोई मैंडेटरी नहीं है कि यू हैव फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तभी आपका क्लियर होगा। कोई भी सेक्शन से हो गए तो देखिए, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से उसका मैथ स्ट्रांग है, मे बी दूसरा कुछ सब्जेक्ट वीक है, तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका वीक होगा ही। वो मीट मत रखिए कि वो साइंस बैकग्राउंड से इसीलिए हो गया, बहुत बच्चे का यही मीट रहता है। तो प्रिलिमिनरी के लिए सुपर्णो आप बोलना चाहते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस। और आप ये मेंस के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मेंस के लिए আমি বলবো যে ইংলিশ আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, ইংলিশ এন্ড কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই দুটোকে বেশি ফোকাস করো। বিকজ ইন মেন্স ম্যাথস আর রিজনিং তুমি পারবে, তুমি যখন প্রিলিমস পাস করতে পেরেছো কিছু না কিছু তুমি পারবে, এভারেজ তো তুমি পারবে, বাট তোমাকে যে এজ দেবে সেটা দেবে তোমাকে ইংলিশ আর करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली, बिकॉज प्रिलिमिनरी में उन्होंने बोला है अगर आपने क्लियर किया है दैट मींस आपका बेसिक नॉलेज हो गया है मैथ्स और রিজনিং को लेकर। আমি একটা কথা এখানে বলতে চাইবো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ক্ষেত্রে, যে আমার যেটা ধারণা যে অনেকেই এখনো জানে না জিনিসটা, যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর ক্ষেত্রে না এখন স্ট্যাটিক নলেজ ব্যাংকিং এক্সামে লাগে না, অনেস্টলি স্পিকিং লাগে না। জাস্ট তোমার যে ব্যাংকিং অ্যাফেয়ার্স, ব্যাংকিং কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এন্ড আদার্স যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স লাইক স্কিমস, नेशनल पॉलिसी एंड ऑल, एगुलो जिनिसগুলো आपको स्टैटिक पूछेगा भी वो करंट से पंच करके पूछेगा। लाइक स्टैटिक जो होता है ना, जो बैंकिंग का जो स्टैटिक है वो पूरा जाके इंटरव्यू में रखता है, बट करंट अफेयर्स में सेक्शन में नहीं रखता। सुपर्णो, आप करंट अफेयर्स के लिए कैसे प्रिपेयर किए? एविशन का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेट होता है, तो वहाँ से मैं डेली बेसिस में पढ़ते? यस। अच्छा, मतलब अच्छा कितना महीने के लिए आपने करंट अफेयर्स पढ़े? 6 months। मतलब पूरा जब आपका एग्जाम है तब से लेकर पूरा 6 मंथ तक आपने पढ़ा। ओके, तो सुपर्णो मेंस तो गया, राइट? तो मेंस के बाद आता है इंटरव्यू। एसबीआई में जैसे हम लोग जानते हैं वहां पर ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज भी होता है, देन आपका पीआई होता है, परसेंटेज। तो उसके लिए कहाँ से आपने प्रिपरेशन ली? एविशन पे लिया। अच्छा, तो वहाँ से कैसा आपको हेल्प मिला, मतलब जीडी के लिए, जीई के लिए? सौरभ सर ने बहुत हेल्प किया कि वो बताए लीडरशिप के बारे में एंड ऑल, एंड जीई के देखिए जीडी एंड जीई ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज दोनों दो अलग बात है। हाँ ठीक है, मैं ये दोनों में मैं सौरभ सर ने बहुत हेल्प किया। रूपा मैम ने जो मैम हैव रेडी है जो যিনি আগে হচ্ছে মানে এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেছেন, যিনি এসবিআই পিও, তিনি হচ্ছে মানে অনেকভাবে গাইডেন্স দিয়েছেন, তো এইসব দিক দিয়ে অনেক হেল্প পেয়েছি। অ্যান্ড লাস্টলি পিআই যেটা বলছেন পার্সোনাল ইন্টারভিউ, সেটা একজন স্যার আর এখানকার যে রূপা ম্যাম অ্যান্ড আদনান স্যার তারা নিয়েছিলেন, তো হেল্প করেছিলেন বেশ। अच्छा सुपर्णो, सोचिए कोई मतलब इस फेज से बहुत डरता है तो उसको ओवरकम कैसे करें? इंटरव्यू से बहुत डरता है, रेगुलरली मॉक इंटरव्यू देना चाहिए। रेगुलरली मॉक इंटरव्यू, जैसे मॉक टेस्ट যেরকম মক টেস্ট সেরকম মক ইন্টারভিউ রেগুলার। अच्छा, एस्पिरेंट का और एक कॉमन क्वेश्चन रहता है सुपर्णो कि मीडियम कोई वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करता है, मतलब हु आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, तो अगर मतलब वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है? देखिए यहाँ पे ना हिंदी मीडियम बोल देते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में मत बोलो तो क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट करते नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जरा हिंदी में बात करके दिए गए, क्योंकि देखिए अगर कोई प्रॉब्लम एक्चुअली थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि आप पीओ के लिए सिलेक्ट होने जा रहे हो, तो वो पैन इंडिया है, राइट? तो आप जहां पर भी जाओगे मे बी वहां का रीजनल लैंग्वेज आप जान नहीं पाओ, लेकिन आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत जानना है क्योंकि अदरवाइज आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए वो देखते हैं। ओके, देन आपका प्रीलिम्स गया, देन मेंस गया, देन इंटरव्यू, राइट? तो आप पूरा जर्नी के लिए समराइज क्या करना चाहेंगे कि आपका स्ट्रेटेजी क्या था कि आपका इतना सारा एग्जाम एक ही फ्लो में निकल गया? प्रीलिम्स के लिए, सब प्रीलिम्स के लिए सेम स्ट्रेटेजी है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मॉक टेस्ट देना रेगुलरली। मतलब प्रीलिम्स इज इक्वल्स टू मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। Mock from Aviation and very important word is analysis. Okay. Then after that means के लिए English and current affairs.
मेंस के लिए इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। डेली बेसिस आपको इंग्लिश, आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ते थे? सर का जो नोट्स है, वोकैबुलरी से। अच्छा, और पेपर पढ़ते थे? यस, पेपर पढ़ते थे। कौन सा पेपर? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस, ओके। मतलब देखिए दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ दी हिंदू, लेकिन दी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने से भी हो जाएगा, राइट? ओके फाइन। तो उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, जो यहाँ से अपने प्रिपरेशन लिए। Exactly. अच्छा, तो ये पर्सनल क्वेश्चन है शुकौनो, इसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? मैं SBI PO में तो अभी तो ज्वाइन करूंगा। इसके बाद मेरा एक सपना है, लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस, कि RBI ग्रेड बी का देखते क्या होता है। मे गॉड ब्लेस यू। हम चाहते हैं कि आपका वो भी हो जाए, राइट? तो देखिए आप हमारा जो ऑडियंस है, कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स है या फिर सोच रहा है कि हम प्रिपरेशन शुरू करें, तो इनके लिए कुछ बोल दीजिए। देखिए, फॉर बैंकिंग एग्जाम्स मैं बोलना चाहूँगा कि बैंकिंग एग्जाम बहुत जल्दी होता है और बहुत फास्ट होता है। कि अगर आप कोई एक स्ट्रेटेजी को मेंटेन करना चाहें ना, तो आप एक होता है ना कि SSC और WBCS के लिए प्रिपरेशन करने के समय इतना समय मिलता है बीच में कि रॉन्ग ट्रैक हो जाता है, ट्रैक से बाहर निकल जाता है लोग। बट बैंकिंग एग्जाम में ये नहीं होता। बैंकिंग एग्जाम में कि लोग इतना जल्दी होता है, इतना फास्ट एग्जाम होता है कि एक सेम ट्रैक में ही एक एग्जाम क्लियर करना स्टार्ट करोगे ना, तो इसके बाद एग्जाम्स क्रैक करना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये एक बात है। तो मोटिवेशन मत हारो, एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करके चलो, अपना प्रेफरेंस लेके, तो हो जाएगा। अच्छा, तो शुकौनो यही बोलना चाहते हैं कि बैक टू बैक एग्जाम आता है तो कोई आपका ट्रैक चेंज नहीं होगा, आप ठीक तरह से पढ़िए। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले ही हम लोगों का पेंडेमिक सिचुएशन गया, वहां से हम लोगों को पता है व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए दिस इज अ हाई टाइम यू हैव टू डिसाइड कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब बहुत इम्पैक्ट रखता है लाइफ में। क्यों? सिर्फ देखिए हाई सैलरी नहीं है, प्रेस्टिजियस जॉब है, आपका सिक्योरिटी है, जो बहुत मैटर करता है, राइट? तो आप लोग डिसीजन ले लीजिए किसके लिए पढ़ना चाहते हैं। और जो लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो बैंकिंग के लिए सोच ही सकते हैं। और बैंकिंग के लिए अगर सोच रहे तो ये सोच रहे कहाँ से प्रिपरेशन ले कि एज सुन एज पॉसिबल हो जाए। क्योंकि देखिए एक साल में ही 6 नौकरियां उन्होंने मतलब क्रैक कर लिया। जो फिर से हम आपको गिनाने वाले हैं कि नंबर 1 जो जिनके लिए वो ज्वाइन करना चाहते हैं, SBI PO, SBI क्लार्क, IBPS PO, कनारा बैंक में उनका हुआ है, और आपका हुआ है LIC AAO, CGL, और जो बहुत सारे एग्जाम है जिनका उनका प्रिलिमिनरी भी हो गया है, राइट? तो चलिए शुकौनो, कांग्रेचुलेशन, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सारा शुभकामनाएं। तो देखिए एक ही चीज बोलना चाहते हैं, 3 cheers फॉर शुकौनो नाग, हिप हिप हुर्रे, एंड आल्सो 3 cheers फॉर एविजन, राइट? आप थैंक्स बोलना चाहते हैं ना? ऑब्वियसली। चलिए, तो आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं, आपकी फ्यूचर अच्छा हो। लेकिन देखिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कहाँ से आपको प्रिपरेशन लेना है तो देखिए ये हम लोग नहीं बताएंगे, लेकिन आप एक उनका बात सुन के समझ ही पा रहे कि कितना हेल्प हुआ उनका प्रिपरेशन में। तो आइए दोस्तों, एविजन में आइए और आपका भी सक्सेस स्टोरी हम ही बनाएंगे, उसका गारंटी है मेरा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे तो एविजन के बारे में जरूर सोचिए। थैंक यू सो मच।